few days ago when I went to the office, like I traveled from Noida to Gurgaon for my office once a week. So like 2 weeks ago, something happened with me in the office which made me question about the office friendships. 2 to 3 weeks ago, I was traveling to the office and I was already late. My shift starts at 7 a.m. but I reached by I think 8:15 or 8:30, and a few of my team members were already there. Like they reached early by 6:15 or 6:30 maybe. So they were already there in the office, but on the floor nobody was there. जब मैं फ्लोर पे मैं बैठी लॉगिन वगैरह किया तब उस टाइम पे कोई नहीं था. They were all on break. So I was just checking my mails, like some pending tasks. मैंने सोचा कि थोड़े बहुत मेल्स या कुछ एक पेंडिंग टास्क है वो ख़त्म करके देन फिर ब्रेक पे जाती हूँ. So एग्जैक्टली वही किया. गई मैं ब्रेक पे. Then my team was already done with their breakfast. उनका ऑलरेडी हो चुका था एंड मैं बैठी उनके साथ. I mean it would be like hardly 2 to 3 minutes. Then they left. They said that okay, we have some urgent tasks, so we have to go. Sorry, we cannot sit with you. And I was there sitting alone and having my breakfast. So this is what happened there. I mean it's not like I wanted them to sit with me like for complete 30 to 40 minutes, but at least 10 to 15 minutes के लिए वो थोड़ा साथ में बैठ के कंपनी दे सकते थे. देन उसके बाद मैं उनको खुद ही बोलती थी कि आप लोग चले जाओ करके, बट ऐसा नहीं हुआ. एंड समटाइम्स मैं अकेली जाती हूँ, बट उस टाइम पे मैं गई. मैंने सोचा चलो टीम के साथ बैठूंगी, थोड़ा सा कंपनी मिल जाएगी, बट उस टाइम पे आई डोंट नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. So this incident made me realize something about office friendships. I was like, are we like friends or just cubicle neighbors? I mean, we spent like 9 to 10 hours together in the office. And when it comes to the basic reality of corporate life, I mean, everyone is just looking out for themselves. And I literally spent 2 hours of commute from Noida to Gurgaon just to see the reality of office friendships. But these are all basic etiquettes. At least you can give someone at least 5 to 10 minutes of company. आप थोड़ी देर तो बैठ के एटलीस्ट उनको कंपनी दे सकते हो. इट्स नॉट लाइक यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. मैं भी 2 घंटे लगा के गई हूँ. मुझे भी काम अपना फिनिश करना है, बट आई गेस दे थिंक completely different. And it's not only about this breakfast incident, it's more about like something deeper about the office reality or the corporate reality or friendships. So let's head back inside because I really want to talk about the actual truth of office friendships, which I've realized over the years. At least these pigeons are better than office people, right?
So I'm now back from my walk, and as we were talking about that particular incident which happened with me like a few days back in the office. So I mean, it has happened like quite a multiple times, but this time it made me realize that हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है that हम लोग ऑफिस के लोगों को लाइक सेकंड फैमिली ट्रीट करते हैं, like it's our second family, and apart from the family who we have at home. But I guess the reality is a bit different. And most of us have high pressure environments, like not only in the office but outside of the office as well. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेरी वीडियोस पहले की नहीं देखी है, देन आई ट्रैवल फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है. सो दैट ट्रैवल टाइम एड्स अप एज अ प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट फॉर मी. एंड आई एम श्योर आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ट्रैवल करते होंगे, लाइक फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा और दिल्ली टू गुड़गांव और वाइस वर्सा. एंड नॉट ओनली इन दिल्ली, मे बी अगर आप किसी और सिटी में हो, देन वहाँ भी अगर आपका लॉन्ग ट्रैवल हो जाता है ऑफिस तक, then I mean it just adds up as a pressurized environment. And not only this, office may be like you all know कि pressurized environment होता ही है. We have the meetings, the deadlines, and like connecting with your teammates or the other teammates, and there are multiple activities जो conduct होती हैं offices में भी, like mostly on Fridays and on other days as well. That's a good way for social interaction, but in reality it's actually different. ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो या बात कर रहे हो, so you can be friends with them outside of the office as well. It doesn't happen that way. वो जो ऑफिस में हैं फ्रेंड्स, दे आर इन द ऑफिस ओनली. वो बाहर आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो बस ऑफिस फ्रेंड्स ही आप उनको बोल सकते हो. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू फिनिश अ डेडलाइन, या आपकी कोई डेडलाइन है या आपका कोई पर्सनल काम है जिसकी वजह से आप किसी भी मीटिंग या कोई भी टीम लंच अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, देन आई मीन यू आर लेफ्ट आउट. लाइक वो आपको बाद में ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, आपके साथ उतना अच्छे से बिहेव वो नहीं करते. एंड ये सब कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वी आर फोर्स्ड टू प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स ओवर सोशल कनेक्शंस. एंड एक और अगर एग्जांपल की बात मैं करूँ, सो आई हैव different like timings for my breakfast, lunch or snacks, whatever it is. So उसकी वजह से भी ऑफिस में किसी के साथ ब्रेक पर जाना हो नहीं पाता, बिकॉज मैं मोस्टली लेट ही पहुंचती हूँ ऑफिस, क्योंकि एज यू नो, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई ट्रैवल फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, एंड मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है लाइक 6:30 या 7 AM से. तो मैं पहुंचती हूँ लेट, एंड तब तक सब लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका होता है, एंड आई एम द ओनली वन लेफ्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू गो अलोन. एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें अगर होती हैं आपके साथ में, देन डेफिनेटली आप इनके बारे में सोचते हो कि आई मीन आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, या हम अपनी तरफ से कुछ गलत कर रहे हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आई मीन वी आर प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्व्स बिकॉज हमने एग्जांपल्स देखी हैं, लाइव एग्जांपल्स, तभी हम अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज़ दैट मैं अब डेलिबरेटली ब्रेक्स पर अकेले ही जाती हूँ, सो दैट कि मुझे वो सब चीज़ें झेलनी ना पड़े कि मैं गई और लोग उठ के चले गए उस टाइम ही, मेरी टीम के लोग, और फिर मैं अकेले वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ.
थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी हो जाती है वो सिचुएशन मेरे लिए। तो इस वजह से मैं अब अकेले ही जाती हूँ। आई मीन आई डू नॉट गो आउट विद देम, लाइक आई डू नॉट इवन वेट फॉर देम, आई सिट सेपरेटली, मैं अलग ही जाके बैठती हूँ। इट इट लुक्स रूड बट इट्स ओके। अगर आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है इस चीज़ से तो आई वोंट से दैट इट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। यू शुड डेफिनेटली कीप योर पीस ऑफ माइंड एज अ प्रायोरिटी। एंड अगर ऑफिस की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया मैं ब्रेक्स पर अकेले ही जाने लगी हूँ। तो मैं वहाँ ब्रेक्स पे भी थोड़े बहुत जैसे इंटरनेट पे कुछ ना कुछ रिसर्च करके पढ़ने लगी, या नॉट ओनली इंस्टाग्राम की फीड तो मतलब घर पे भी आप बैठ के स्क्रॉल करते रहते हो, बट ऑफिस में लाइक आई मोस्टली लाइक रीड सम आर्टिकल्स, यू नो, if it's interesting enough for me. सो दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ बिजी। और बाकी टाइम तो आप ऑफिस का काम ही करते हो, बट ड्यूरिंग द ब्रेक्स मैं थोड़ा सा अपने आप को बिजी रख लेती हूँ अकेले होकर भी। सो आपने देखा कि आई मीन ऑफिस रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर एक्चुअल रियलिटी लाइक आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। तो आपके जो फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिस हैं, लाइक जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वही आपके रियल फ्रेंड्स रहते हैं। बट ऑफिस पीपल आर डेफिनेटली नॉट योर फ्रेंड्स फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। वो सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिटेड हैं, नॉट आउटसाइड द ऑफिस। सो आई थिंक एक दो लोग ऐसे भी हो जाते हैं, लाइक जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स जैसे मैं बोल रही थी वो रियल फ्रेंड्स होते हैं, बट एक दो उनमें से भी ऐसे निकल जाते हैं कि यू नो एक टाइम बाद वो भी अपने काम से काम रखने लग जाते हैं। दे लाइक फ्रेंडशिप से उनको ज़्यादा वो मतलब रह नहीं जाता पुरानी फ्रेंडशिप से। सो ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर अभी रिसेंटली हुआ था, मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी। तो क्या हुआ था कि वी यूज्ड टू टॉक लाइक शी मूव्ड अब्रॉड, वो अब्रॉड चली गई थी, बट व्हाट्सएप पे हमारी काफ़ी अच्छी लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होती थी। व्हाट्सएप कॉल पे तो नहीं हो पाती थी, बट जैसे कि व्हाट्सएप पे चैट मैसेजेस के थ्रू बहुत लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस हम लोग एक दूसरे को लिखते थे, वॉइस मैसेजेस भेजते थे। एंड ऐसा भी होता था कभी कभी कि काफ़ी दिन बाद वो रिप्लाई देती थी मेरे मैसेजेस का। सो मे बी शायद कुछ काम हो जाता होगा, या वो कभी कभी इंडिया भी ट्रैवल करती थी बीच बीच में, सो मे बी उसकी वजह से भी उसको टाइम नहीं मिल पाता होगा। एंड शी इज़ मैरिड, वो मैरिड है, सो शी स्टेज विद हर हस्बैंड। बट यू नो लाइक इतने टाइम बाद वो रिप्लाई देती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि यू नो 7-8 दिन हो गए, कभी कभी 2-3 हफ्ते हो गए, कभी कभी तो 1-2 महीने बाद रिस्पॉन्स आ रहा है। बट फिर भी हमारी बात हो जाती थी, लाइक चैट पे लॉन्ग मैसेजेस हम लोग एक दूसरे को भेजते थे। बट एक बार क्या हुआ, मैंने मैसेजेस किए उसको, बट लाइक 3-4 महीने या 4-5 महीने आप बोल सकते हो ऐसे ही चले गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो आई डिलीटेड ऑल दी मैसेजेस, मैंने डिलीट कर दिए, बिकॉज मुझे लगा कि अब तो शायद पता नहीं, हो सकता है कहीं और बिजी हो गए हो या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने कई बार बीच में उसको पूछा भी खुद से कि लाइक इफ एवरीथिंग इज ओके, या सब कुछ ठीक तो है, या इज इट लाइक समथिंग एल्स सो यू कैन शेयर विद मी, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ से। तो ये सब देखते हुए फिर मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। मुझे लगा अब तो कोई बात होगी नहीं वैसे भी, सो देयर इज़ नो पॉइंट। सो फिर क्या हुआ कि नवरात्रि जब शुरू होने वाले थे, तब फिर उसके कुछ दिन पहले उसका मैसेज आया सरप्राइजिंगली, और मैं उसकी डीपी देख के समझ गई कि ओके ये वही है, क्योंकि मैंने नंबर तो डिलीट कर दिया था, सो नंबर तो मुझे याद नहीं था, बट डीपी देख के मैं समझ गई थी। सो आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसके मैसेजेस का। उसने बस 1-2 मैसेज भेजा, बट मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देन फिर उसके बाद उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता दैट मुझे ब्लेम करने लगी कि यू नो कि दैट आई गेस तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है बात बात करने का। सो आई डोंट नो, आई मीन 1-2 मैसेजेस उसने और लिख के भेजे, बट तो मैं बस वही सोचने लगी कि आई मीन एक तो आप बात ना करो, ठीक है, एक तो इतने टाइम बाद आके आप मैसेज करो, उसके बाद आप दूसरे को, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो कि आपकी गलती है, आप खुद देखो कि एटलीस्ट आप क्या कर रहे हो। सो तो आई मीन ऐसे भी रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ एक दोस्त हैं जो निकल जाते हैं
and she used to be my very good friend. I mean, you could say that she was my best friend. मैंने उसने काफ़ी मेरी हेल्प भी की है, लाइक मेंटली भी मैं थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब रहती थी बीच बीच में, बट उसने काफ़ी मेरी हेल्प की थी ऐसे टाइम पे भी. सो वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. बट ऐसा भी हो जाता है, बेस्ट फ्रेंड्स भी कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं. I guess we deviated a bit from the actual topic, which is like the reality of the corporate life. So, corporate life में भी ऐसा ही होता है, जिसको आप समझते हो बेस्ट फ्रेंड है या लाइक जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट जैसा मैंने बोला वो सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिटेड है. इट्स नॉट लाइक आउटसाइड ऑफ द ऑफिस. इट रेयरली हैपन्स. एंड अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका कोई ऑफिस फ्रेंड बना हो, वो बाहर भी आपका काफ़ी साल तक फ्रेंड है या अभी भी है, सो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताना. आई वुड रियली लाइक टू सी सच पीपल, कि हाँ, आई मीन उनके भी ऑफिस के भी अच्छे फ्रेंड्स बने हैं. सो मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, सो माई सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. बट अगर आपके साथ ऐसा अच्छा कुछ हुआ है, लाइक अच्छे फ्रेंड्स आपके रहे हैं लॉन्ग टाइम ऑफिस से जो आपके फ्रेंड्स बने, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. So I guess that's the expectation versus reality of corporate life. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिस में भी हमारे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, दे आर आवर फैमिली. जो हमारी कंडीशनिंग हुई है उसके हिसाब से वो हमारी सेकंड फैमिली है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. एंड ऑफिस में जैसे मैंने बोला, आपके जो भी फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि बन रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक प्रोफेशनल कन्वीनियंस. वो सिर्फ एक प्रोफेशनल कन्वीनियंस ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर कंपेटिटर्स. हर कोई आपकी टीम में जो भी है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपसे वो आगे निकले, या मैनेजर को कैसे वो पटा के रखे जिससे कि वो आपसे आगे बढ़ पाए, लाइक आप उनको रिकॉग्निशन मिल सके, अच्छा रिवॉर्ड मिल सके मैनेजर से. सो लाइक दे आर ऑलवेज competing with you. And I would not recommend sharing anything personal with your office colleagues. अपनी कुछ भी पर्सनल चीज़ें आप उनसे कभी भी शेयर मत करना, because they can use it against you at some point or the other. एंड ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास कोई एक बहुत अच्छा आइडिया है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, या कोई भी इम्प्रूवमेंट आप प्रोजेक्ट में लाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है, एंड आपने गलती से अगर आपने किसी कॉलीग को, अच्छा आप दोस्त समझते हो, उसके साथ अगर शेयर कर दिया, तो बस आपका क्रेडिट सारा वही ले जाएगा. वो जाके आइडिया आप अपने मैनेजर को बता देगा, एंड सारे का सारा क्रेडिट उनको मिलेगा, एंड रिकॉग्निशन भी उनको ही मिलेगा. तो आप गलती से भी ये गलती बिल्कुल मत करना. अपने आइडियाज़ जो भी हैं वो आप डायरेक्टली मैनेजर्स के साथ में शेयर करो, या अपने तक ही रखो. बिकॉज एज आई मेंशन, कोई भी ऑफिस में आपका दोस्त नहीं है, वो आपको बस एक कंपटीशन समझते हैं. एंड ये ज़बरदस्ती की दोस्ती रखनी पड़ती है, अदरवाइज सब लोग आपको यही समझेंगे कि अरे ये तो अकेले बैठे रहते हैं, इनसे तो क्या ही बात करनी है. एंड देन फिर मैनेजर भी आपको दूसरी नज़रों से ही देखने लगते हैं, लाइक तुमको फिर ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं देंगे. कुछ भी एक्टिविटी अगर होगी या कुछ भी रिकॉग्निशन के लिए, वो आपको नहीं कंसिडर करेंगे. तो ज़बरदस्ती के आपको रिश्ते भी बनाने पड़ते हैं ऑफिस में, ज़बरदस्ती की दोस्ती. एंड मेरे साथ ऐसा भी हुआ था जब मैं शुरू में आई थी, तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी थी जो मुझे करनी थी, जिसके लिए मुझे हायर किया गया था. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने फर्स्ट डे में शायद थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट किया, क्योंकि इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा था मेरे लिए. सो वो थोड़ा सा कुछ रह गया था. तो उसकी वजह से मैनेजर ने क्या किया कि अपने किसी दूसरे बंदे को वो एक्टिविटी में डाल दिया, और मुझे डाल दिया उन्होंने पूरा प्रोसेसिंग पार्ट में, जो जूनियर लेवल के बंदे करते हैं. तो उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया, और अभी तक इट्स बीन लाइक 2.5 years. तो अभी तक वही चल रहा है. मुझे अभी तक उस चीज़ के लिए वापस से उन्होंने बोला ही नहीं करने के लिए. मैंने कई बार डिस्कशंस भी किए, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला. वो कुछ ना कुछ अलग अपना एग्जाम्पल लेकर के आ जाते हैं, देन दे से कि आप फिर और एक्टिविटीज़ आपके पास होंगी नहीं करने को, सो इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा एंड ऑल. तो बट जिसको दिया था उससे भी मुझे अभी बात, मतलब थोड़ी बहुत बात तो करनी पड़ती है आपको टीम वालों से. तो
सी आई मीन वही लगता है ना कि जो आपका अच्छा दोस्त है वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है एक टाइम को। एंड आई यूज टू थिंक, मैं शुरू में एक्चुअली उससे भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली थी उस बंदे से जिसको वो टास्क हैंडल कर दिया गया था। सो आई थॉट कि ठीक है, एक दो अच्छे फ्रेंड्स मिल गए तो अच्छी बात है, काफ़ी बातें शेयर हो जाती थी। बट देन फिर बाद में जब ये सब हुआ तब फिर लगा भाई कोई आपका दोस्त नहीं है ऑफिस में, नोबडी इज योर फ्रेंड। सब ऊपर के दिखावे के दोस्त होते हैं।